Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे मैं आज आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक और प्रॉब्लम आगे पढ़ाऊंगा। पिछले बार के लेक्चर में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज की शुरुआत की थी। को पॉसिबल है जब भी कुछ नया करे, थोड़ा कुछ अलग करे, तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी घबराहट होती है। लेकिन हर चीज़ ज़िंदगी में कभी ना कभी तो नया होता ही है, पर जब उसको रिपीट अभी के लिए आप टीवी देखने में बड़े अच्छे हो, आप खाना खाने में बड़े अच्छे हो, मतलब सम थिंग्स दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस यू गॉट सो गुड, आपके लिए वो इतना सिंपल हो चुका है। उसी तरह ये जो पढ़ाई है ना, मुश्किल ज़रूर होती है, बट जब रिपीट करो, ओके, वो इजी हो जाएगा। आज भी हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, बट बता देता हूँ कि जो लेजर्स है उसमें P&L एडजस्टमेंट, कैश और गुडविल, ये रफ वर्क है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रफ वर्क, बट ऊपर का बैलेंस शीट इज फेयर वर्क। तो क्वेश्चन एग्जामिनर का जो इच्छा, वो बोलेगा ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो, जो बोलेगा वो हम सब कर रहे, मार्क्स इसके लिए मिलेगा। एंड यू रिक्वायर 2 पेजेस जर्नल्स, तो आप वो भी कर लेना। पार्टनर्स का नाम सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा, एंड द क्वेश्चन एंड द पेज नंबर वो हमेशा टाइटल में आपको दिख जाएगा। अभी के लिए तो मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा, जिनका रेशो था इक्वल 1:1, ओल्ड रेशो। दोनों का कैपिटल विल गो टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर बिल्स पेबल विल गो टू न्यू बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर मेरे तरीके से, जहाँ पे RDD 0 होगा, ओके। और स्टॉक एसेट, कैश को कैश अकाउंट में डालेगी। ये है सिंपल स्टेप 1। फिर ऑन 1st April 2018, Aparna, the new person, joins as the third partner for 1/5 share in future profits. Now you have old ratio and you have new partners ratio या fraction। तो इतना पढ़ के आपको बहुत कुछ करना है। आपको पहले न्यू रेशियो ढूंढना है, फॉर विच यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ 1 विच इज 1 - 1/5, बराबर। आपको आएगा 4/5 विच इज कंबाइंड रेशियो, हम ऐसा कहते हैं। ये काम आता है NOC ढूंढने में। क्या करना है हमको? NOC का न्यू रेशियो ढूंढना है, इन विच ऑल द 3 पार्टनर्स आर अ पार्ट। सुजाता के लिए
ओल्ड रेशियो इज और वॉज 1/2 इंटू 4/5, 4/10. पूर्णिमा के लिए 1/2 इंटू 4/5, 4/10. बट अपर्णा का 1/2 नहीं, 1/5 है. वो बन जाना चाहिए अपॉन 10. हाँ, तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. इंटू 2 इंटू 2. So the new ratio in this problem for these three partners is 4:4:2, 2:2:1. सैक्रिफाइस का क्या, वो अलग फॉर्मूला, अलग से सॉल्व करो. माइनस करना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई. अच्छा, तो फॉर सुजाता क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट 1. फॉर पूर्णिमा क्रॉस मल्टीप्लाई you get 1. That is 1:1. Yes. So many problems में the sacrifice ratio and the old ratio same आता है. by heart मत करना, don't take it for granted, solve करना. okay, new ratio done, sacrifice ratio done. Point number A, goodwill is valued at 2 lakh. what is that? goodwill का value 2 लाख है. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अपर्णा आ रही है ना, तो वो सिर्फ अपना गुडविल, पूरा 2 लाख नहीं, 2 लाख सबका है, अपर्णा का हिस्सा. तो अपर्णा का रेशो यूज करके आपको अपर्णा का हिस्सा ढूंढना पड़ेगा. ओके, तो वो थोड़ा याद रखना, जस्ट नॉट जस्ट याद रखना, लेट मी शो इट टू यू. अपर्णा शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख इंटू 150, बिकॉज दैट इज अ शेयर. हाउ मच इज दैट? 40,000. So when they say Aparna is to bring her share in cash, 40,000 कैश में आएगा, जो आगे जाके ऊपर के डायग्राम के हेल्प से मैं आपको दिखा दूंगा. पॉइंट नंबर बी, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल. कैपिटल आएगा कैश में. पॉइंट नंबर सी, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. वी कॉल दिस आरडीडी. आरडीडी बिल्कुल नहीं है, आपको 10% का आरडीडी क्रिएट करना है, हो जाएगा. पॉइंट नंबर डी, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 80,000. या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. ई, स्टॉक कॉमा होना चाहिए. प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. 20% स्टॉक को कम करेंगे, सेकेंड इफेक्ट. 20% मशीनरी को कम करेंगे, सेकेंड इफेक्ट. ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज गूगली टू रिकॉर्ड द अबाउ अरेंजमेंट्स एंड गिव ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अलावा द रिमेनिंग इन द लेजर्स आर रफ, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगी. ओके, अच्छा, आपके लिए तो लेजर स्टार्ट करते हैं. इवन दो पार्टली रफ वर्क में है, थोड़ा जल्दी करते हैं. लास्ट लेक्चर आई थिंक हमने कुछ 30 मिनट ले लिया था. ट्राई करते थोड़ा कम टाइम में हो जाए. कैपिटल्स विल फर्स्ट गो टू कैपिटल अकाउंट जस्ट बिहाइंड मी, 1 lakh and 1,40,000. Then creditor and bill payable just above me, creditor, bill payable 34,000, 26,000. Next, land and building, plant, furniture, debtor, stock. कैश को कैश अकाउंट में डालेंगे, बट उसके ऊपर जो है वो मेरे ऊपर है. सो लैंड एंड बिल्डिंग. somebody says सर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का एल लिखा, तो नॉर्मली बोलते हैं ना एल लूजर. नहीं, यू आर नॉट लूजर, यू आर विनर. तूने बराबर टेक्निक यूज़ किया, क्योंकि वैसे भी ये रफ वर्क है. हाँ, बैलेंस शीट रफ वर्क नहीं है, तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नहीं, बाकी का जो भी जगह है तुम रफ वर्क करो, तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखो. अच्छा, बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट में रफ वर्क नहीं आना चाहिए. ओके, डेटर इनर कॉलम आरडीडी 0 तैयारी करके रखो. ओके, स्टॉक एंड देन लास्टली कैश, तो वो उधर है 80,000. ये स्टेप 1 हो गया बराबर. अब एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट, दुकान का गुडविल 2 लाख, सबका मतलब सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा. बट अपर्णा नहीं आ रही है, तो अपर्णा को वो कैश में लाना पड़ेगा. ओके, विच वी ऑलरेडी फाउंड आउट 40,000. अच्छा, वो कैश में कैसे लेके आती है? कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल क्रेडिट. कैश अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल एंड गुडविल क्रेडिट साइड. इसके बाद छिपा हुआ एडजस्टमेंट, जिसका ना पर्दाफाश आपको करना पड़ता है. व्हाट इज दैट? दिस 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड
टू द ओल्ड पार्टनर्स, सुजाता, पूर्णिमा, सैक्रिफाइस रेशो हाफ हाफ। ओके, तो बेसिकली वो अकाउंट लाइक बंद हो गया 40,000 उधर 2 मेरे पीछे ठीक मेरे इस तरफ बाय। तो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। वेदर वो विड्रॉ करेंगे ये नहीं पता, एक्चुअली ये प्रॉब्लम में नहीं है, पढ़ा ना हमने, बट दे कैन विड्रॉ इट अहेड, दे कैन विड्रॉ इट अहेड। ओके, देन पॉइंट नंबर पी, अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख, 1 लाख रुपया कैपिटल का ला रही, तो ऊपर है अपर्णा, सॉरी कैश डेबिट, ऊपर है कैश डेबिट, अपर्णा कैपिटल क्रेडिट, कैश में जाओ डेबिट करो 1 लाख रुपीज़, और ठीक स्टीवन सर के पीछे या तो बगल में, पहले पीछे बोलता हूँ फिर ना जाने में थोड़ा टाइम जाता है, बाय कैश 1 लाख। पॉइंट नंबर सी, अ प्रोविजन ऑफ 10%, प्रोविजन का मतलब है जगह, रिजर्व। वो अगर आप कोई जगह पे जा रहे हो जहाँ पे ना एक दोस्त जाता है और 4 और आने वाले, 4 लेट हो गए, तो 4 करके बोलते ये मेरी जगह पकड़ना, ये मेरी जगह रिजर्व करके रखना, तो उसी तरह प्रोविजन बना के रखना। हाँ, तो आरडीडी का प्रोविजन 10% का आपको बना के रखना है। वेयर इज आरडीडी, है ही नहीं, जीरो है, जीरो। वो क्या बोल रहे 26,000 का ना तुम 10% बना लो आरडीडी, 2600, बाहर कितना आएगा 23,400, डेटर नहीं चेंज हो गया, आरडीडी जिसमें पहले जीरो था, जीरो अब 2600 हो गया, दैट मीन्स इट हैज इंक्रीज ब्रैकेट के अंदर बाय 2600, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2600। ओके, सेकेंड इफेक्ट, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपको प्लस करना है, तो डेबिट में आया टू आरडीडी 2600। ओके, आरडीडी का इट्स माय रिक्वेस्ट, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना हर प्रॉब्लम में, आरडीडी 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 देते हैं, ओके, थोड़ा वेराइटी देते हैं, बट इफ़ यू डू इट 4 और 5 टाइम्स सिंपल हो जाएगा, सारी वेराइटीज़ आप ऑटोमेटिकली कवर अप कर लोगे। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 80,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग अंदर है 60, बाहर डाल दो 80, 20,000 इंक्रीज, अप्रिसिएशन इंक्रीज, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, एसेट प्लस क्रेडिट में आपको लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। नेक्स्ट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 20%, पहले स्टॉक को कर लो 20% से रिड्यूस, आई थिंक 8,000 आएगा, आउटर कॉलम में 32, प्लांट को कर लो 14,000 आएगा, आउटर कॉलम में 56। डोंट फॉरगेट द सेकेंड इफेक्ट, इधर तो माइनस किया बट एसेट माइनस ना, दोनों का ए माइनस या माइनस ए आपको डेबिट में दिखेगा, टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, द रीवैल्यूएशन, द बदलाव। ओके, नेक्स्ट, एक्चुअली कुछ नहीं है, ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। Okay, so we are done with reading the question. Now we have to do the tally. Okay, पहला गुडविल अकाउंट तो पहले से ही हो गया, आप चाहो तो पहले रिवैल्यूएशन कर लो, बाद में बैंक कैश या कैश कर लो, बाद में चलेगा। अच्छा, तो क्रेडिट में आपको 4,600 आता है विच इज़ लॉस, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में, ओल्ड रेशो विच इज़ हाफ, सो 2,300 उधर बाय, इधर 2, इधर मेरे बगल में 2, 2,300 में मेरा पोजीशन जैसे हमेशा चेंज करता हूँ ताकि वो स्क्रीन आपको विजिबल रहे। अच्छा, सुजाता का टोटल किया 1,20,000, डेबिट में डिफरेंस 1,17,700, पूर्णिमा का टोटल किया 1,60,000, डेबिट में डिफरेंस 1,57,700। दोज हु आर a little faster with their calculations, mental maths, उनका आंसर्स जल्दी आएगा, जो थोड़े स्लो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू टेक योर मिनट एक्स्ट्रा, बट फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सोल्यूशन, एंड टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम दैट्स ओके, व्हेन यू प्रैक्टिस मोर यू विल गेट गुड, बेटर, बेस्ट एट इट। अपर्णा का 1 लाख, दीज आर बेसिकली बैलेंसेस
which will go to the balance sheet. I will switch myself, so the balance sheet is visible above to you, and the total of all the capitals in the outer column, 375,400. Before I total the balance sheet, it want if cash account में भूल जाओ, तो कैश अकाउंट को मैंने कर लिया 2,20,000, वो उधर क्रेडिट है, ये ठीक मेरे ऊपर डेबिट में आने वाला है 2,20,000. नाउ आई कैन टेल 4,35,400, बट बिसाइड द बैलेंस शीट बाकी सब रफ वर्क है. अभी आपको जर्नल एंट्रीज करने हैं और वो कंटिन्यूएशन है फेयर वर्क का. चलो कुछ तो मार्क्स मिलते हैं ये बैलेंस शीट के लिए. इसके बाद मैं क्या करूँ, आप ना सम को पढ़ो और ये अंडरस्टैंड करो कि आपने पहले क्या किया. पहले मैंने बैलेंस शीट की, उसमें मैंने कैपिटल लिखा, बट वो तो बैलेंस लिखा, नो एंट्री. क्रेडिटर बिल पेएबल, वो गया बैलेंस शीट में, नो एंट्री. लैंड प्लांट फर्नीचर डेटर स्टॉक, वो गया बैलेंस शीट में, नो एंट्री. कैश, वो तो बैलेंस है, नो एंट्री. ओ, एक भी एंट्री नहीं बैलेंस शीट का, बिल्कुल नहीं. भी होता है, जनरल रिजर्व करके आता है. पॉइंट नंबर 1 में आपने क्या किया, देखो गुडविल 2 लाख था, बट अपर्णा ने अपना हिस्सा कैश में लाया 40,000. अच्छा, वो तो अपन ने पहले देख लिया था. कैश अकाउंट टू गुडविल, कैश अकाउंट टू गुडविल, ये आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री था. तो चलो जी कर लेते हैं ये वाला एंट्री. 40,000 टू गुडविल, बीइंग गुडविल बॉट इन कैश बाय अपर्णा. द मोमेंट ये कैश में गुडविल लाई, पुराने जो पार्टनर्स है उन्होंने चुपचाप अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. तो गुडविल क्या हो गया, डेबिट. आई रिपीट माई सेल्फ, ओके, आई जस्ट गेट द माउस करेक्ट. गुडविल डेबिट टू सुजाता टू पूर्णिमा, 20,000. दिस इज नॉट हैविंग अ डायग्राम, सो goodwill debit, this is the distribution in the sacrifice ratio, the distribution in the sacrifice ratio, being goodwill distributed to old partners in sacrifice ratio. ये एक hidden adjustment होता है. इसके बाद में अगेन क्वेश्चन पढ़ लो. कहा अपर्णा ने 1 लाख का कैपिटल लाया. so it's a lot simple for me to tell you rather than showing you. कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल, योर तीसरा एंट्री. बीइंग कैपिटल बॉट बाय अपर्णा. नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 10%, ये आरडीडी का कैलकुलेशन था. डी, लैंड एंड बिल्डिंग इज 80,000, ये भी रीवैल्यूएशन था. Stock, plant and machinery. So the points C, D, E are all revaluations. मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको ऐसे पॉइंट वाइज नहीं करना, आप रिवैल्यूएशन में चले जाओ, चले गए, और उसके डेबिट रिवैल्यूएशंस और उसके क्रेडिट रिवैल्यूएशंस का एक एक एंट्री कर लो. अच्छा, डेबिट मतलब P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू RDD, टू स्टॉक, टू प्लांट. तो दैट इज one entry for the debit revaluations, P&L adjustment debit 2. अलग अलग मत करो, देन जहाँ पे हम 6 एंट्री करते वहाँ पे 10-12 एंट्री हो जाएंगे, एंड इट इज़ अननेसेसरी बिकॉज यू डोंट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट. ओके, बीइंग रीवैल्यूएशंस रिकॉर्डेड. एंड क्रेडिट में तो लैंड एंड बिल्डिंग ही है, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग तो डेबिट आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट आ जाएगा. ओके, राइटिंग लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अगेन revaluations recorded. After you have done the debit revaluations, credit revaluations, then you got loss. अच्छा, वो भी तो क्रेडिट साइड पे था, तो एडजस्टमेंट क्रेडिट, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ये दोनों को डेबिट. सुजाता डेबिट, पूर्णिमा डेबिट, सुजाता डेबिट एंड पूर्णिमा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट.
दिस इज लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जी। आफ्टर दिस व्हाट डिड यू डू? सरप्राइजिंगली यू डिड अ लॉट, बट उसका एंट्री नहीं है। फिर आपने कैपिटल को टोटल किया, बैलेंस आया, उसका नो एंट्री। आपने कैश को टैली किया, बैलेंस आया, उसका नो एंट्री। बैलेंस शीट तो टोटल हो गया, उसका तो वैसे भी एंट्री नहीं आता। सो व्हाट यू हैव डन राइट नाउ इज द लास्ट जर्नल एंट्री। तो इट्स नॉट अ वेरी लेंदी जर्नल्स, 10-15 करने नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज थे, क्योंकि हाफ मार्क्स यहाँ पे था और हाफ मार्क्स बैलेंस शीट के लिए था। तो एग्जामिनर ने बड़े स्मार्टली बैलेंस किया उसको। आप लास्ट में जो ग्रैंड टोटल आता है 229,200 वो कर लो। सो थोड़ा थोड़ा सिमिलर टू लास्ट टाइम्स, क्योंकि वहाँ पे ही जर्नल था, आज भी जर्नल है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आने वाले 2 लेक्चर्स में भी जर्नल्स ही रहने वाले हैं, ओके फेयर वो। तो थोड़ा थोड़ा सेम टेक्निक में हम करेंगे। एडमिशन हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योंकि 100% उसमें से प्रॉब्लम आता ही है, एक नॉर्मली 10 मार्क का आता है। लेट्स सी, होपिंग एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, ताकि यूट्यूब कैन सेंड यू द नोटिफिकेशंस। अगर आप यहाँ पे पुराने हो तो जी शेयरिंग करते रहें, ओके। हमारे चैनल और चैनल के ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि इंटरेक्शन, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है, कोई रिक्वेस्ट है, आप कर सकते हो। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर कोई डाउट है उसको क्लियर करे और आपको मैं वो बता दूँ। जब तक मैं दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।